yourself the life of your dreams. Listen to this every day for 21 days and you will see your world transform. It is very powerful. Remember to feel gratitude for all that you already have and all that you are in the process of manifesting. Everything you desire is simply waiting for you in the infinite field of consciousness, and your gratitude will magnetize and maximize your power of manifestation. Thank you. Thank you for this day. Thank you for the air I breathe. Thank you for the gift of life. Thank you. Thank you for my bed. Thank you for my shower. Thank you for the roof over my head. Thank you for my home. Thank you for warmth. Thank you for my healthy body. Thank you for the earth beneath my feet. Thank you for my freedom. Thank you for Mother Nature. Thank you. Thank you for this day. Thank you for the air I breathe. Thank you for the gift of life. Thank you. Thank you for my intuition. Thank you for travel. Thank you for my ability to replenish and rejuvenate. Thank you for companionship. Thank you for the plants. Thank you for my ability to visualize. Thank you for the flowers. Thank you for my ability to dream. Thank you for the trees. Thank you for my ability to manifest all of my desires. Thank you. Thank you for this day. Thank you for the air I breathe. Thank you for the gift of life. Thank you. Thank you for the sun. Thank you for my ability to create wealth. Thank you for the moon. Thank you for my ability to do what I love. Thank you for the wind. Thank you for reflection. Thank you for all my teachers. Thank you for the night sky. Thank you for all my lessons. Thank you for the stars. Thank you. Thank you for this day. Thank you for the air I breathe. Thank you for the gift of life. Thank you. Thank you for the oceans and the seas. Thank you for silence. Thank you for the forests. Thank you for my self-respect. Thank you for the mountains. Thank you for my ability to feel inner peace. Thank you for the rain. Thank you for my ability to sleep peacefully. Thank you for the infinite opportunities available to me. Thank you for all my senses. Thank you. Thank you for this day. Thank you for the air I breathe. Thank you for the gift of life. Thank you. Thank you for water.
Thank you for fresh fruits and vegetables. Thank you for my ability to live with authenticity. Thank you for choice. Thank you for the balance of life. Thank you for transportation. Thank you for my capacity to unconditionally self-love. Thank you for my family. Thank you for my friends. Thank you for compassion. Thank you. Thank you for this day. Thank you for the air I breathe. Thank you for the gift of life. Thank you. Thank you for kindness. Thank you for my ability to give and receive. Thank you for my creativity. Thank you for my capacity to feel joy. Thank you for light. Thank you for sound. Thank you for my playfulness. Thank you for my ability to have wholesome, loving relationships. Thank you for laughter. Thank you for rest. Thank you. Thank you for this day. Thank you for the air I breathe. Thank you for the gift of life. Thank you. Thank you for delicious foods and drinks. Thank you for my ability to touch and be touched. Thank you for the beauty of nature. Thank you for my ability to forgive. Thank you for all the seasons. Thank you for my ability to heal. Thank you for wildlife. Thank you for my ability to achieve financial freedom. Thank you for my passions. Thank you. Thank you for this day. Thank you for the air I breathe. Thank you for the gift of life. Thank you. Thank you for my strong bones. Thank you for my strong muscles. Thank you for my healthy heart. Thank you for my strong back. Thank you for my legs. Thank you for my feet. Thank you for my arms. Thank you for my hands. Thank you for my eyes. Thank you for my ears. Thank you for my taste buds. Thank you for my healthy digestive system. Thank you for my balanced nervous system. Thank you. Thank you for this day. Thank you for the air I breathe. Thank you for the gift of life. Thank you. Thank you for the process of realizing my innate perfection. Thank you for movement. Thank you for my ability to learn and grow. Thank you for new beginnings. Thank you for my ability to have a deeply fulfilling romantic relationship. Thank you for color. Thank you for my ability to make peace with my body.
Thank you for music. Thank you for my ability to trust. Thank you for books. Thank you for my inner sanctuary. Thank you. Thank you for this day. Thank you for the air I breathe. Thank you for the gift of life. Thank you. Thank you for dance. Thank you for my natural talents. Thank you for my vibrant energy. Thank you for my inner wisdom. Thank you for my healthy boundaries. Thank you for all my experiences. Thank you for all my blessings. Thank you for my capacity to love and be loved. Thank you for my unique spark of the divine. Thank you for my connection to all that is. Thank you. Thank you for this day. Thank you for the air I breathe. Thank you for the gift of life. Thank you. This is Jess from Live the Life You Love, supporting you to create your dreams. And I love you. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट चैप्टर। सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना एवरीवन? ओके। सो कल हमने समझा था कि हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है अपनी मॉर्निंग से लेके नाइट तक की सभी एक्टिविटीज के लिए। मॉर्निंग में हमें ग्रेटिट्यूड देना है। फुल डे में हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उन सभी में हमने ग्रेटिट्यूड देना है। और रात को सोने से पहले हमें खुद को क्लीन करके एक परफेक्ट ग्रेटिट्यूड के साथ एक स्लीप लेनी है, परफेक्ट स्लीप लेनी है जिसे हम कहते हैं। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे, बट इज इन द चैट बॉक्स। गुड, ओके, थैंक यू। कल हमने समझा था कि हम कैसे इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करेंगे नाइट टाइम में। आपको अपने बेड पे जैसे आप सोने की पोजीशन पे आ रहे हो, वहां पे आपने आना है। अपनी आंखें आप खुली रखना चाह रहे हो, खुली आंखों से आप देखना चाह रहे हो वैसे कर सकते हो, आंखें क्लोज करना चाह रहे हो वैसे। पूरे दिन की एक्टिविटी को आपने इमेजिन करना है। वो आपकी किसी के साथ भी इंटरेक्शन का हो सकता है। आपके जॉब में, जॉब डे में आपने क्या एक्टिविटीज की उसके बारे में हो सकता है, या पब्लिकली आप कितने लोगों से मिले हो और आपका दिन कैसा गया, उन सारी चीजों के बारे में हो सकता है। इसमें पॉजिटिव चीजें भी हो सकती हैं और नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं। एंड इन द एंड आपको किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है? इस बॉडी के लिए, क्योंकि इसी की हेल्प से आप ये सारी एक्टिविटीज देख पाए हो, फील कर पाए हो और प्रैक्टिकल वे में भी कर पाए हो। ठीक है। और आपकी सांसें, ब्रीथ, जैसे कि हमने अभी प्रैक्टिस भी किया ग्रेटिट्यूड में, क्योंकि जब तक हमारी ब्रीदिंग कंटिन्यू है हम एक्टिविटीज कर सकते हैं। अंटिल हमारी ब्रीथ स्टॉप हो जाती है उसके बाद हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर अ डेड पर्सन। तो अंटिल वी आर अलाइव, दैट्स अ वेरी वेरी ग्रेटफुल थिंग। No, there is no limit to what you can be thankful for. Say it as many times as you want. जितनी बार भी आप बोलना चाह रहे हो, आप जस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी बोलना चाह रहे हो, आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। जिसको जितनी बार भी आप बोलना चाहते हो आप बोलिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई इट इज इम्पॉर्टेंट? ग्रेटिट्यूड क्लीन्स योर हार्ट। ग्रेटिट्यूड जब आप करोगे तो वो क्या करेगा? आपके हार्ट को क्लीन करेगा।
और आपके माइंड को भी क्लीन करेगा साथ में। पूरे दिन का हमने जो बर्डन अपने माइंड में होल्ड किया होगा, वो सारा क्या होगा, वो क्लीन हो जाएगा उस चीज में, हमारी स्लीप के ड्यूरिंग में। एंड इट हेल्प्स योर ब्रेन एंड बॉडी रिलैक्स एंड फील सेफ। ये आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को रिलैक्स फील करवाएगा, सेफ फील करवाएगा, कि कोई बरीज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब ओके है। तो आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। इट टीचेस यू टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, नॉट जस्ट द गुड बट द स्ट्रगल्स टू। ये आपको क्या करेगा, जब आप फुल डे की एक्टिविटी को नोटिस करोगे तो आप में एक्सेप्टेंस आएगी, क्योंकि वो फैक्ट हो चुका है। जो भी एक्टिविटी आपके फेवर की है चाहे नहीं है, वो एक्टिविटी हो चुकी है, वो एक फैक्ट के रूप में, उसे हम डिनाइल नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ग्रेटिट्यूड क्या करेगा, आपको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी देगा, कि हाँ उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया जाए, चाहे वो गुड है, चाहे वो आपके फेवर का नहीं है, चाहे वो कोई स्ट्रगल है आपका। नेक्स्ट, even if your day wasn't perfect or if something went wrong, still say thank you for the bad past too। जो भी बैड पार्ट आपके डे का जा रहा है उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ, बिकॉज एवरी एक्सपीरियंस हेल्प्स अस ग्रो, इवन द टफ वंस। स्पेशली जो टफ वन रीजंस होते हैं हमारी डे के, वो हमें क्या करते हैं, वो हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, उस चीज का सॉल्यूशन सीख करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास क्या होगा, ऑलरेडी उस चीज का सॉल्यूशन होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ग्रो का पॉइंट है। तो जो भी बैड एक्सपीरियंस आ रहा है, वो हमें क्या कर रहा है, उस ऑब्स्टेकल को क्लियर करने के लिए एक पाथ दिखा रहा है अलग। तो वो क्या करेगा, वो भी उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, क्योंकि हम एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गए हैं। एंड द फाइनल थॉट, एट नाइट डू नॉट होल्ड ऑन टू एनीथिंग, लेट इट गो विद लव। जो भी चीजें हुई हैं उसे प्यार के साथ आप लेट गो करो, उसको यूनिवर्स में आप छोड़ दो, कि हाँ ये एक्टिविटीज हो चुकी हैं और मैं इनके लिए ग्रेटफुल हूँ, इनसे मेरे को जो भी लेसन्स मिले हैं मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। इवन, sorry, use these few minutes before sleep to practice and play with gratitude। There is no right way, just say thank you in your own way, in your own feeling। जैसे भी आप फील कर रहे हो, जो भी आपका स्टाइल है थैंक यू बोलने का, आप उस चीज में इसको एक गेम की तरह लेके इसको प्रैक्टिस करो, प्ले करो खुद के साथ। ठीक है, किसी भी चीज को आपने छोड़ना नहीं है पूरे दिन की एक्टिविटी में, जितनी भी चीजें आपके माइंड में आनी है सभी को आपने ग्रेटिट्यूड देना है। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी, क्योंकि पूरे दिन की जो भी एक्टिविटीज आपने प्रैक्टिकली फेस की है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, वो आपका एक एक्सपीरियंस बन चुका है। और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे आपका बिलीफ सिस्टम भी बन रहा है। बिलीफ सिस्टम नए से नया बनता है हमेशा, कोई बिलीफ सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो परमानेंट रहे आपकी लाइफ में। बिलीफ सिस्टम को हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम आज एक्सेप्टेंस करना सीख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड करना सीख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये भी हमारा एक नया बिलीफ डिवेल्प कर रहा है। एंड से थैंक यू एंड रेस्ट। लास्ट में आप आराम से रेस्ट कीजिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स। जो भी चीजें हो रही हैं उनको एक्सेप्ट करो। लिविंग इन ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू लिविंग इन पीस। जब आप ग्रेटिट्यूड में रहना स्टार्ट कर दोगे तो आपके अंदर क्या होगा, एक कामनेस आ जाएगा, एक पीस आ जाएगा। आप इनफ फील करोगे खुद में कि मेरे पास सफिशिएंट सोर्सेस हैं हर चीज के, मेरे को किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मेरे पास हर चीज की फैसिलिटी है, मेरे पास ट्रैवल करने के लिए फैसिलिटी है, मेरे पास स्टडी करने के लिए फैसिलिटी है, मेरे पास एंटरटेनमेंट के लिए फैसिलिटी है। फूड आइटम्स हमारे पास अलग अलग अवेलेबल्स होती हैं, तो वो जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या हैं, हमारी ग्रेटिट्यूड के लिए ही है। तो जब हम ग्रेटिट्यूड में चले जाएंगे तो हमारी कंप्लेन नहीं रह जाएगी किसी भी एक्टिविटी को लेके। when you when you stay in the state of constant gratitude, something amazing happens। You begin to accept everything just as it is। आप क्या करोगे, जब आप कॉन्स्टेंटली इसको प्रैक्टिस करते चलोगे तो कुछ अमेजिंग चीजें हमारी लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम डिनाइल नहीं करेंगे किसी भी चीज को, हम सारी बातों को, सारे रीजंस को, सारी सिचुएशंस को हम एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यू स्टॉप फाइटिंग विद लाइफ। मोस्टली क्या होता है कि हमारी लाइफ में कोई चीज जब फेवर में नहीं आती है तो हम फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं उस फैक्ट के साथ। तो वो चीज क्या होगी, वो हम स्टॉप कर देंगे। जो फैक्ट हो चुका होगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, हाँ उसके सॉल्यूशन पे हम काम करेंगे, बट जो सिचुएशन हो चुकी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ जाएगी और हम मूव ऑन करना सीखेंगे, लेट गो करना सीखेंगे। लाइफ के साथ हम फाइट बैक नहीं करेंगे। और आप क्या बोलना बंद कर दोगे इसमें,
दिस शुडंट बी हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आई विश दैट डिडंट हैपन, कि मैं, काश वैसा नहीं हुआ होता। या वाई मी, मेरे को क्यों क्यों मेरे साथ ही ये सारी सिचुएशंस आती हैं। या दिस इज नॉट फेयर, कि मैं किसी का किसी के बारे में भला सोच रहा हूँ और सामने वाला मेरे फेवर की बात नहीं कर रहा है, या सामने वाले ने मेरे साथ मिसबिहेव किया या मेरा बुरा किया। तो ये चीजें क्या होगी, ये आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि आपने अपने एंड से तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स डाला किसी चीज में, बट सामने वाले की तरफ से वो रिस्पॉन्स वैसा नहीं आया है। तो दैट इज फेयर, मतलब हम किसी और को हम चेंज नहीं कर सकते, किसी और की चॉइसेस हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारी चॉइसेस होती हैं। तो इंस्टेड ऑफ Instead, you just say thank you for everything that happens, whether it feels good or bad, whether you like it or not. And guess what? This simple act of accepting everything without judgment brings peace, healing, and even miracles. जब ये सारी चीजें आप फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स, जिसे हम कहते हैं, मिरेकल्स को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज जिनकी आपको नीड है, एक्चुअल में जो आप डिजायर कर रहे हो वो नहीं, जिनकी आपको नीड है ग्रोथ करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आने स्टार्ट हो जाती हैं। बस ये होगा कि आपको जो साइंस यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे होते हैं उनके लिए आपको अवेयर रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कई बार 11 11 टाइमिंग दिखता है, कई बार 12 12 का दिखता है, कई बार 1 1 1 दिखता है, 4 4 दिख रहा है, 5 5 दिख रहा है। तो ये क्या है, ये साइंस है। अलग अलग छोटे छोटे मैसेजेस, हम इंस्टा चला रहे हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ हमारी सिचुएशन से रिलेटेड मैसेज मिल जाएंगे, या हम यूट्यूब पे कुछ सीख कर रहे हैं, हमारे अंदर जो सवाल चल रहा है उससे रिलेटेड हमें वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब आप ग्रेटिट्यूड की फॉर्म में आ जाओगे तो ये मिरेकल्स की फॉर्म में जो अपॉर्चुनिटीज होंगी वो धीरे धीरे आप लोगों के सामने आनी स्टार्ट हो जानी है। हाँ, यू आर, बट डज दिस मीन, मतलब ये सारी चीजें करने के बाद क्या मतलब निकलता है। फर्स्ट थिंग, यू आर नो लॉन्गर इन डिनाइल। आप डिनाइल में रहना बंद कर दोगे। डिनाइल में कौन रहता है, जो सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, मैं इसको चेंज करूंगा, मैं फाइट बैक करूंगा। क्या होता है, क्योंकि कई बार माइंड में ऐसी चीजें हो जाती है कि नहीं, मैं अपनी लाइफ को चेंज करने की कैपेसिटी रखता हूँ, वो फैक्ट है। बट कई बार लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करके यूनिवर्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते, यूनिवर्स कुछ नहीं होता, सारी चीजें अपने हाथ में हैं। बट कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें करके लेट गो करना होता है, उनका हम रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमें रिजल्ट कब मिलना है, वो यूनिवर्स की टाइमिंग पे मिलना है। अगर आप यूनिवर्स की टाइमिंग से पहले उन चीजों को एक्सपेक्ट कर रहे हो और उनके लिए फाइट कर रहे हो तो यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, यू विल फील एंगर एंड गिल्टी। जितने भी नेगेटिव इमोशन हैं हमारे, वो सारी चीजें हम फील करना स्टार्ट कर देते हैं। नो, यू आर नो लॉन्गर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। आप जितनी भी चीजें लाइफ में हो रही हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश आप नहीं करोगे। आप दृष्टा बन जाओगे अपनी लाइफ के, कि मैं बस बैठ के देख रहा हूँ कि मेरी लाइफ में कौन सा इंसान किस मोमेंट पे आ रहा है, ये इंसान मेरी इस लाइफ के इस मोमेंट पे क्यों अवेलेबल है। आप ये छोटी छोटी चीजों को कनेक्ट करके अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दोगे लाइफ को। फाइट नहीं करोगे इसके साथ, ना ही कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जो हो रहा होगा उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे, चाहे वो आपके फेवर का है चाहे वो आपके फेवर का नहीं है। तो ये चीज आपको क्या देगा, पीस देगा। एंड यू आर लर्निंग टू से यस, दिस हैपेंड, हाँ कि ये हो चुका है। आई डोंट लाइक इट मे बी बट आई एक्सेप्ट इट, मैं इसे पसंद ना करूं बट ये हो चुका है, एंड थैंक यू फॉर दैट थिंग, कि मेरे में एक्सेप्टेंस आई है उस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेटिट्यूड इन रियल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, समवन लॉस्ट देयर जॉब। अब जब किसी का जॉब चला जाता है तो उसके अंदर क्या फीलिंग आएगी, फर्स्ट वो उसे बहुत गुस्सा आएगा, या शायद वो बहुत परेशान हो जाएगा कि मैं अभी फाइनेंशियली कैसे ग्रो करूंगा, मेरी मनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, मल्टीपल वो चीजें क्या करेगा, सोचना स्टार्ट कर देगा। सोचने के साथ वो क्या कर रहा है, नेगेटिव अट्रैक्शन डाल रहा है खुद में। एंगर के साथ क्या हो रहा है, नेगेटिव अट्रैक्शन आ रहा है, आपकी वाइब्रेशन लो हो रही है। बट जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो उस चीज के लिए आपका बोलोगे थैंक यू फॉर दिस मोमेंट। आपको पॉज चाहिए हो सकता है इस लाइफ के इस मोमेंट में, क्योंकि हायर पर्पस पे आप नहीं देख पा रहे हो कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। वो आपका हायर पावर, जो हमारी हायर पावर है वही उस चीज को अंडरस्टैंड कर रही है। तो उस चीज को आप
डिनाई नहीं करोगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और मैं ग्रेटफुल हूँ इस मोमेंट के लिए भी। समवन हर्ट योर फीलिंग्स, किसी ने आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। क्या सिखाया उसने कि जितना प्यार आप किसी और को कर रहे हो, उतना अगर सेल्फ लव आप खुद के साथ करो, तो आप कितना ग्रेटफुल फील करोगे, कितना हैप्पी फील करोगे, कितना लवेबल फील करोगे। आपके पास प्यार की कमी नहीं होगी। बट मोस्टली हम क्या होता है, हमारे अंदर का जो प्यार होता है हम बाहर देने की कोशिश करते हैं। वो प्यार तो देखो एक ऐसी चीज है कि उसमें अनकंडीशनल होता है, वो कंडीशन के साथ नहीं आता। जहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है, मोह है, अट्रैक्शन है हमारा। ठीक है। तो अगर किसी ने आपको हर्ट किया, इट मीन्स वो कोई आपको एक तो लेसन सिखा के गया है, सेकंड उसने आपको हेल्प किया है ग्रो करने का और खुद के साथ प्यार करने का। तो ये आपको वो चीज सिखा के गया कि आप किसी और को बाद में प्यार करो, पहले आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। एंड इसके बाद आप क्या फील करोगे, यू फील हैप्पी, स्ट्रांग एंड काम। अगर आप ये सारी चीजें फील कर रहे हो, तो जो ये पीस आपको मिल रहा है इन सारी पॉजिटिव इमोशंस को फील करके, तो आप क्या करो, उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ। यू आर स्टक इन ट्रैफिक और फेस अ डिले। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कई बार ट्रैवल करना होता था, लाइक मेरे को 10 बजे पहुंचना है, मैं 11 बजे वहां पहुंच रही हूँ। बट आगे जाके मैं क्या देखती थी कि वहां पे मेरा 11 बजे ही पहुंचना सही है, वो मेरा टाइम लाइक वेस्टेज में नहीं जाता था। वो ऐसा होता था कि मेरा टाइम एक अच्छा स्मूथली पास हो गया, कि हाँ अगर मैं 1 घंटा पहले वहां पे चली जाती तो मैं बोर हो जाती या मेरे पास करने को कुछ नहीं होता। बट अगर मैं 1 घंटा वहां पे लेट हो गई हूँ ड्यू टू सम रीजन, नॉट पर्पसली, लाइक वो यूनिवर्स की तरफ से वो चीजें डिले हो जाना, ट्रैफिक में फंस जाना, गाड़ी नहीं मिलना, या मल्टीपल चीजें हो जाती थी। तो वो चीजें क्या करती हैं, वो आपको फ्रस्ट्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि माइंड में होता है कि हमें तो 10 बजे का टाइमिंग है, हमने तो 10 बजे ही पहुंचना है। बट यूनिवर्स को पता है कि अगर आप 11 बजे भी पहुंचोगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई आपकी गाड़ी वहां से नहीं छूट रही है या आपका काम वहां पे डिसमिस नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें हैंडल कर रहा है। सो मे भी हो सकता है हमें वो पॉज मिले, और हमें वो पॉज मिला है, तो उस टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड होने की जगह हमें क्या प्रैक्टिस करना है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। उसमें एक तो ये आपकी प्रैक्टिस को भी इंक्रीज कर रहा है, सेकंड आपको काम रख रहा है, ठीक है, सेकंड आपके ग्रो में हेल्प कर रहा है। और कोई नेगेटिव चीज कंज्यूम करने की जगह आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम पॉजिटिव चीज कंज्यूम कर रहे हो। क्योंकि ये जो हमारी 5 सेंसेस है, हमारे कान, आंखें, नाक, मुंह, हमारी स्किन, ये सारी चीजें क्या कर रही, कंटिन्यूअसली हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उनको बना रही होती है। क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं, हम कोई चीज देख रहे हैं तो उससे हम कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं तो उससे भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, वो सीड हम अपने माइंड में डाल रहे हैं। तो उस फ्री टाइम में क्या करो, ग्रेटिट्यूड में चले जाओ, या पॉजिटिव अफर्मेशन सुन लो, या आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर लो, या कोई भी आप रिलीजियस सॉन्ग सुनना चाहते हो वैसे सुन लो, कनेक्ट करो खुद को डिवाइन के साथ, दैट इज। क्योंकि एट द एंड हायर पर्पस इज टू कनेक्टिंग विद द डिवाइन एंड विद हायर सेल्फ। नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, एक बार हम देख लेते हैं। व्हाट डज इट मीन टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, सभी चीजों को एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है। कई बार लाइफ में नेगेटिव चीजें भी आती है, इंसान नहीं एक्सेप्ट करने के इसमें होता है, सिचुएशन में होता है, क्योंकि माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम हमारा, जिसने हमें एक्सेप्टेंस करना नहीं सिखाया होता है, वो एकदम से फाइट बैक करता है कि तुम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, हम तो इस चीज को चेंज कर सकते हैं, ये हमारे फेवर में हो सकता है। तो इसमें क्या करना है कि हमने जो गुड और बैड थिंग्स हैं उनको जज करना छोड़ ही देना है। हमें पता ही नहीं है कि जो सिचुएशन हमें इस टाइम पे बैड लग रही है वो एक्चुअल में बैड है भी है या नहीं है। वी डोंट नो दैट थिंग। तो उसके लिए क्या करना है कि हाँ इस टाइम पे ये चीजें हो रही है, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दैट थिंग, जस्ट एक्सेप्ट दैट थिंग। तो उसमें क्या होगा, आप आपके अंदर जो फाइट करके क्या होता है, हमारे अंदर गिल्ट ही आएगा, एंगर आएगा। एंगर क्या करता है, हमें खुद को जलाता है, ठीक है। तो वो चीज आप क्या करोगे, कट ऑफ कर दोगे अपनी लाइफ में कि हाँ नहीं, मेरे को उस सिचुएशन में जाना ही नहीं है, मेरे को उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है कि हाँ ये चीज क्यों हुई, ये चीज मेरे फेवर के लिए ही हुई है। अभी के लिए रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं है, बट आई विल वेट एंड वॉच। डू एक्सेप्टेंस मीन गिविंग अप, क्या जो हम चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम चीजों पे गिविंग अप कर रहे हैं। नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब क्विटिंग नहीं होता, चीजों से भागना नहीं होता, या चीजों को बीच में छोड़ना नहीं होता। ये इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हो रहा है हम उसके साथ अपनी पीस मेंटेन करके चल रहे हैं।
देन टेकिंग एक्शन कामली। और अगर हम पीस मेंटेन करेंगे तो जो एक्शन हम एंगर में या गिल्ट में ले रहे हैं, उसकी जगह हम क्या करेंगे, सोच समझ के, काम होके, हर चीज का सिनेरियो देख के फिर हम डिसीजन लेंगे, ना कि एंगर में या फियर में। वाई से थैंक यू फॉर बैड थिंग्स, बुरी चीजों के लिए थैंक यू क्यों बोले हम लोग? कोई भी चीज आपकी लाइफ में हो रही है, आपको एक्सपीरियंस दे रही है, कुछ ना कुछ सिखा रही है। से थैंक यू हेल्प्स योर हार्ट स्टे ओपन एंड पीसफुल इवन ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स। जब आपके हार्ड टाइम्स आएंगे और आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे, तो आपका हार्ट क्या होगा, वो बिल्कुल पीसफुल स्टेट में होगा। बाहर जो मर्जी हो रहा है उसमें आप इफेक्ट होने वाले नहीं हो, आपका इनर पीस अफेक्ट ही नहीं होगा उस चीज में। आप एक्सेप्ट करोगे, दृष्टा की तरह मैं कह रही हूँ ना, कि आप लोग सिर्फ देखोगे कि बाहर क्या सिनेरियो चल रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कौन किसके साथ लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, क्या रीजंस हो सकते हैं उनका। लाइक आप समझोगे कि लोग कितना एक होता है ना कि ऐसी दुनिया में रहना जहाँ पे खबर ही नहीं है कि हम क्या करने आए हैं यहाँ पे, हमारा हायर पर्पस है क्या यहाँ पे। तो वो चीजें क्या होगी, वो आप समझना स्टार्ट कर दोगे, आपके अंदर पीस होगा। आप तब अगर खुद के अंदर पीस होगा तभी हम किसी और को पीस दे पाएंगे, तभी हम किसी को शांति क्या होती है उसके बारे में बता पाएंगे। बट अगर हमें खुद को नहीं पता, तो हम बाहर की चीजों को नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो दैट्स वाई ग्रेटिट्यूड हमें उस चीज में भी हेल्प करता है, कि जो भी बुरी चीजें हमारे सामने हो रही हैं, हमारे हार्ड टाइम्स चल रहे हैं, तो उनको हमारा हार्ट जो क्या होगा, ओपनली एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है, दिस इज हैपनिंग। बहुत सारी सिचुएशन देखो, हमारी लाइफ अभी तक, माई एज इज 34, मेरी लाइफ में अभी तक ऐसी सिचुएशंस बहुत आई हैं जो मेरे फेवर की नहीं रही हैं। बट एट द एंड आज की डेट में जब मैं उन सिचुएशंस को देखती हूँ, तो वो मेरे ग्रोथ के लिए बहुत रिक्वायर्ड थी। उस टाइम पे हो सकता है वो मेरे लिए पेनफुल हो, उस टाइम पे हो सकता है कि वो मेरे फेवर की नहीं है, मेरे को हर्ट किया। सिमिलर आपके साथ भी हुआ होगा। बट अगर आज की डेट में अपनी लाइफ को आप देखो पीछे एक बार, तो जो भी चीजें हुई हैं, क्या उन्होंने आपको फेवर किया है, क्या उसने आपको ग्रोथ दी है या नहीं दी है? हर हर इंसान को हमेशा ग्रोथ ही मिली होगी। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा डाउनफॉल हुआ। डाउनफॉल हुआ होगा, उसके अपने रीजंस होंगे। लाइक उसकी अपनी एनर्जी वैसी होगी, मैनिफेस्टेशन वैसी होगी, उसका थॉट प्रोसेस वैसा होगा। बट अगर वो ग्रेटिट्यूड में रहेगा, तो वो चीजों की पॉजिटिव साइड को देख पाएगा एज कंपेरिजन टू नेगेटिव चीजों को। हाउ डज दिस हेल्प मी? इट हेल्प्स टू फील लाइटर, कामर एंड मोर कनेक्टेड टू लाइफ। आप लाइफ के साथ कनेक्शन स्टार्ट कर दोगे अपना बनाना। लाइफ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इंडिविजुअल हर इंसान को, आपको ये करना चाहिए, आपको ये स्टडी करनी चाहिए, वो आपको इस कंपनी में काम करोगे तो आपको ये इनकम रहेगा, इस तरीके का काम करोगे तो आपकी वेल्थ ग्रोथ ऐसी होगी। ये सारी चीजें गाइड करते हैं इंसान। बट बहुत ही रेयर्स पीपल हैं इस अर्थ पे जो आपको लाइफ के बारे में बात करेंगे या आपको लाइफ से कनेक्टेड करवाएंगे। क्योंकि लाइफ हर इंडिविजुअल की अलग अलग है। जितनी भी स्पीसीज हैं, सबकी एक लाइफ है, और सब अलग अलग चीजों को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं, अपनी अपनी समझ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो आप जब लाइफ के साथ कनेक्ट करते हो, तो आप अंडरस्टैंड कर पाते हो सामने वाले को भी और खुद को भी, कि हाँ, सामने वाला अगर मेरे को ये चीज बोल रहा है तो वो किस नजरिए से बोल रहा हो सकता है। आप लाइफ को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दोगे। 10 लोगों की क्या सोच है, आपको वो समझ में आने लगेगी। ओवर टाइम इट कैन चेंज योर फीलिंग्स, योर रिलेशनशिप्स, योर हेल्थ। टाइम के साथ क्या होगा, ये आपके फीलिंग्स को चेंज करना स्टार्ट कर देगी। जहां पे आप गुस्सा कर रहे हो, वहां पे आप इग्नोर करके खुद को काम रखोगे। आपके रिलेशनशिप जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, कई बार हम खींच रहे होते हैं रिलेशनशिप्स को भी, आपके आपके पास चांसेस आएंगे डिस्टेंस होने के, या यूनिवर्स ऑटोमेटिकली उनको दूर कर देगा आपसे। ट्रस्ट में, ये मैं फेस कर चुकी हूँ सारी चीजें। आपकी हेल्थ को लेके डाउनफॉल भी आ सकता है, लाइक मेरा डाउनफॉल आया हेल्थ को लेके। बट इस टाइम पे क्या हुआ है, डाउनफॉल तो वो मैं नहीं बोलती, क्योंकि उसने मेरे को बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं। तो वो मेरे लिए डाउनफॉल तो कभी नहीं था। बट लाइक मतलब ये चीजें क्या करेगी, आपको ग्रोथ करने में हेल्प करेंगी। आपकी हेल्थ को आपने कैसे और इम्प्रूव करना है, आपको वो चीजें सिखाएंगे। हेल्थ के ऊपर बात आएगी तभी हम हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। अदरवाइज हमारा फोकस कहाँ है, हमारी पढ़ाई पे, हमारे पैसे पे, हमारे रिश्तों पे, हमारी डेली लाइफ की रूटीन में हम क्या कर रहे हैं, उन चीजों पे हम हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट ही नहीं करते। बट जब ये चीजें आएंगी, अगर प्रॉब्लम भी आ रही है, तो वो किस लिए आ रही है, आपको ग्रो करवाने के लिए आ रही है, कि आप उस चीज के ऊपर ध्यान दो। इस चीज के ऊपर ध्यान देना इस टाइम पे आपके लिए जरूरी है। एंड द फाइनल थॉट इज दैट accept everything, say thank you for everything. This is how transformation began.
ट्रांसफॉर्म जब होना है हमने, तो वो ग्रेटिट्यूड के साथ ही हम हो पाएंगे। जब तक हम ग्रेटफुल नहीं होंगे, जब तक हम कंप्लेन मोड में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को कोई सर्विस दे रही हूँ, लाइक यूनिवर्स हमें हर टाइम सर्विस दे रहा है, एयर दे रहा है, खाने की आइटम्स हमारी अर्थ से खेतों में निकलती है, ठीक है, वहां पे लग रही हैं वो सारी चीजें। वाटर हमें सप्लाई हो रहा है नेचुरल सोर्सेज के थ्रू। तो ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं, बट हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं उन चीजों के बारे में जो हमारे पास नहीं है। तो यूनिवर्स क्या बोलेगा कि मैं इसको इतनी सारी चीजें दे रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलवा रहा हूँ, इतना अच्छा इसको नॉलेज कंसीडर करवा रहा हूँ, बट स्टिल ये मेरे को कंप्लेन कर रहा है। तो मतलब वो क्या करेगा, वो आपको इग्नोर कर देगा उस चीज में, वो उतना ध्यान नहीं आएगा, हालांकि वो कनेक्टेड है। बट जब तक आप ग्रेटिट्यूड नहीं शो करोगे कि हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरे को ये चीजें रिसीव हुई हैं, जब आप ये शो करोगे तो यूनिवर्स समझेगा कि नहीं, इसको रियलाइजेशन है कि मैं इसे क्या गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं इसे क्या फैसिलिटीज दे रहा हूँ, तो वो आपको और फैसिलिटीज देना स्टार्ट करेगा। ये सिंपल सा फंडा है। आपका भी, अगर आप खुद को इस एग्जाम्पल पे यूनिवर्स की जगह खुद पे रखो, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और वो सामने से आपको कंप्लेन किया जा रहा है, एट द टाइम क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप उस इंसान को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, या उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे। आप किसके ऊपर ध्यान दोगे? जो आपको अच्छा फील करवा रहा है, जो आपको ग्रेटफुल हो रहा है आपके साथ। तो सिमिलर यूनिवर्स भी आपको सेम ट्रीट कर रहा होता है। एंड दिस इज वेयर पीस एंड इवन मिरेकल्स आर बॉर्न। यहीं से आपके जो जादू हम एक्सपेक्ट करते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज बी 100% रिस्पॉन्सिबल। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जैसे हमारी बॉडी में हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, तो सेम जब हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करेंगे, तो ये हो अपोनोपोनो का हार्ट है, ये पंपिंग करना स्टार्ट करेगा, लाइक डिफरेंट ए बॉडी की एरियाज में जो आपकी ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशंस हैं उनको भेजना ये स्टार्ट करेगा। ठीक है। टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग इज योर इन योर लाइफ, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इज कनेक्टेड टू यू। जो भी आपके पास में हुआ है, जो भी आपके प्रेजेंट में हुआ है, जो भी फ्यूचर में होने वाला है, वो सारी चीजें क्या हैं, वो चीजें हैं जिन्हें आप सीख कर रहे थे अभी तक। तो सारी चीजें किसके साथ कनेक्टेड हुई? आपके साथ कनेक्टेड हुई, क्योंकि आपने उसको सीख किया, दैट्स वाई वो सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? हमारे ऊपर आ गई कि ये हमने ही अट्रैक्ट किया है या हमने ही मैनिफेस्ट किया है। नेक्स्ट इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग योर सेल्फ और फीलिंग गिल्टी। इसमें खुद को ब्लेम नहीं करना है। अगर आपने कोई नेगेटिव सिचुएशन भी अट्रैक्ट की है, वो भी आपकी ग्रोथ के लिए आई है, तो उस चीज में खुद के ऊपर ब्लेम गेम नहीं करना है, ना ही गिल्टी फील करना है। इट्स अबाउट रियलाइजिंग दैट योर थॉट्स, इमोशन, एक्शन, रिएक्शन, इवन योर बिलीव्स ऑल प्ले अ रोल इन शेपिंग योर रियलिटी। आपकी जो भी एबीसीडी इस टाइम पे रियलिटी है, वो किसने उसको शेप दिया हुआ है? आपके बिलीफ सिस्टम ने। आपने जो रिएक्शंस लिए हैं किसी सिचुएशन पे, कोई आपने एक्शन या रिएक्शन जो आपने किए हैं उस पे, उस सिचुएशंस को लेके आपने क्या फीलिंग्स रखी हैं, कैसे उसको लेके विचार रखे हैं, वो सारी उन्हीं चीजों का एक कोलाज बन गया है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई? चाहे वो नेगेटिव में आ रही है, चाहे वो पॉजिटिव में आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आ गई है। तो इसमें हमें गिल्टी फील नहीं करना है कि हमने अनकॉन्शियसली ऐसी चीजों को अट्रैक्ट किया है जो हमारे फेवर के नहीं है। ना ही हमें खुद को ब्लेम करना है कि मैं मेरे को ये चीजें पहले क्यों नहीं पता थी, या मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट की अपनी लाइफ में, या हमें किसी ने क्यों नहीं बताया। क्योंकि ये भी एक ब्लेम गेम हो जाता है आपकी लाइफ में। अगर इस टाइम पे ग्रेटिट्यूड के बारे में बात हो रही है, इट मीन्स कि आपकी लाइफ में ये चीज अभी आनी थी, अभी आप इस चीज को सीख कर रहे हो कि मैं कैसे खुद को ग्रो करूं इस चीज में, खुद के हायर सेल्फ के साथ कैसे कनेक्ट करूं, मेरे अंदर पीस कैसे आए, हमारे आसपास की सराउंडिंग में हैप्पी इमोशंस कैसे हों। तो वो किससे स्टार्ट होंगे? आपके आसपास इमोशंस तभी स्टार्ट होंगे अगर वो आपके अंदर होंगे। अगर वो आपके अंदर नेगेटिव इमोशन होंगे, तो बाहर भी आपको नेगेटिव इमोशन मिलने हैं। सिंपल सी चीज है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि जैसा आप अट्रैक्ट करोगे वैसी ही चीजें आपको फेस करने को मिलेंगी। जैसे ही आप मैनिफेस्टेशन छोड़ोगे बाहर, वही आप रिसीव करोगे। जो आप ब्रह्मांड को दोगे वही आपको वापस मिलेगा। तो सोच के, कोई नेगेटिव विचार आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे फेवर का नहीं है और मेरे को ये चीज ऐसे नहीं सोचना है, उसी इंस्टेंट मोमेंट पे उस थॉट को से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप देखना वो थॉट ऐसा पास हो जाएगा, आपको लाइफ में कभी दोबारा याद नहीं आएगी वो चीज। हाँ, कुछ थॉट्स ऐसे होंगे जो बार बार खुद को रिपीट भी कर रहे होंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पैटर्न में होते हैं। तो जितनी बार वो आपको वैसे विचार आ रहे हैं,
इंस्टेंट आप उस चीज को रिलीज करो, लेट गो करो, ग्रेटिट्यूड में आ जाओ, दैट्स इट। When you start to say thank you and truly accept everything, you being the real work of यू बिगिन द रियल वर्क ऑफ Ho'oponopono। जब आप थैंक यू बोलना स्टार्ट करोगे और हर चीज को आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे, उसी ही टाइम पे, उसी सिचुएशन पे आपकी जो Ho'oponopono आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका असली काम स्टार्ट हो जाएगा। जो उसका रियल वर्क है वो स्टार्ट कर देगी। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ हीलिंग एंड चेंज। ये क्या करेगा? फाउंडेशन बनाएगा। जैसे बेस होता है ना, घर हमने बनाना है, कोई मकान बनाना है, तो उसके लिए पहले हम बेस तैयार करते हैं। बेस स्ट्रांग होगा तभी उसके ऊपर अच्छी बिल्डिंग बन पाएगी। तो सिमिलरली ये चीज होगी, जब आप एक्सेप्टेंस में आओगे, ग्रेटिट्यूड में आओगे, तो क्या होगा? आपका बेस जो होगा वो स्ट्रांग होगा। आप उसके ऊपर एक अच्छी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। लाइक अच्छे इमोशंस, अच्छी फीलिंग्स, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको कैसे कैरी करनी है, खुद के लिए, वर्ल्ड के लिए कैसे कैरी करनी है, वो अच्छा बेस वहीं से बनना स्टार्ट होगा। यू आर नॉट अ विक्टम एंड देर इज नो नीड टू सी अदर एज ए एनिमी। कोई आपका दुश्मन नहीं है यहाँ पे। फ्रिक्शन हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, थॉट प्रोसेस लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसको सिक्स दिखाई दे रहा है उसको सामने वाले को भी सिक्स दिखाई दे रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है उसको नाइन दिखेगा। तो इट मीन्स ये नहीं है कि सामने वाला गलत हो गया। तो ये क्या है? कोई हमारा यहाँ पे दुश्मन नहीं है, बस हमारी वाइब नहीं मैच हो रही है, या हमारे थॉट प्रोसेस नहीं मैच हो रहे हैं, या ड्यू टू सम रीजन एबीसीडी जो भी है उसके वजह से हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। बट वो भी क्या है? एक ह्यूमन फॉर्म है, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है, सिमिलर फॉर्म है जिस फॉर्म में आप हो। तो वो आपके दुश्मन नहीं है। ना ही आप कोई विक्टिम हो कि लाइक मेरे को बेचारा बनना है। बेचारा नहीं बनना है हमें। हमें स्ट्रांग बनना है और सामने वाले को भी स्ट्रांग बनाना है। वट एवर हैपन्स अराउंड यू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यू। जो भी आपके सराउंडिंग में होगा वो भी आपका ही पार्ट रहेगा हमेशा। देर इज नो सेपरेशन बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड। आपके और पूरे ब्रह्मांड के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। सेम एनर्जी पार्टिकल्स हैं सब। फिजिकल फॉर्म को भूल जाओ, एनर्जी लेवल पे हम बात कर रहे हैं इन सारी चीजों की। वेन यू क्लीन योर थॉट्स एंड इमोशन, द वर्ल्ड अराउंड यू आल्सो गेट क्लीन। जब आप अपने विचारों को, विचारों की सफाई करोगे, अपने इमोशंस की सफाई करोगे, तो क्या करोगे? आपके सराउंडिंग में जो भी सिचुएशंस हो रही होंगी ना, अगर वो आपके फेवर के नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रही है, वो सिचुएशंस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्लीन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये चीज आपको क्या करना है? सेपरेशन नहीं करना है, ना खुद में करना है, ना वर्ल्ड में करना है, ना खुद को विक्टिम मानना है, ना किसी को अपना दुश्मन मानना है। सिंपल सी चीज है। यू डोंट हैव टू फिक्स अदर्स। और आपको दूसरों को भी सही करने की जरूरत नहीं है कि हाँ इस इंसान में ये प्रॉब्लम है, इसे ये समझाने की जरूरत है। उसको डिवाइन अपने आप, डिवाइन टाइमिंग पे अपने आप समझाएगा। जैसे अभी आपको कनेक्ट किया है, वैसे जब उसकी टाइमिंग आएगी वो भी कनेक्ट हो जाएगा। बट उसके लिए आप ये मत करो कि लाइक मेरे को इसको करना है। आप डिवाइन से हेल्प मांगो कि मैं चाहता हूँ, या ये डिवाइन, मतलब लाइक आप सिमिलर एनर्जी में हो, और इस बॉडी के अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो भी इसके नेगेटिव थॉट्स हैं, या जिसकी वजह से भी हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप उसको इतनी समझ दो कि वो हम क्लीनिंग एक दूसरे के साथ कर पाए, या वो इस सिचुएशन से हील कर पाए। हमें ऐसी इमोशंस, ऐसी फीलिंग्स दूसरे इंसान को देनी होती है। यू टेक केयर ऑफ योर ओन एनर्जी। सॉरी, यू डोंट नीड टू आर्गू, कंप्लेन और कंट्रोल वट एनीवन एल्स डज। कोई दूसरा इंसान क्या कर रहा है, आपको उसके ऊपर आर्गू नहीं करना है कि तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ना उसके बारे में कंप्लेन करनी है कि तुम मेरा ख्याल नहीं रख रहे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, ना ही उसे उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। कई बार क्या होता है, जब हम रिलेशनशिप्स में होते हैं ना, और हम किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, तो हम रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है कि हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली ही आ जाती हैं। बट रियल लव में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, दैट मीन्स वहां पे प्यार है, तो उस प्यार को अनकंडीशनल कर दो कि ठीक है, मेरी जैसे मेरी लाइफ में मेरी चॉइसेस हैं, मेरे डिसीजन है, मैं अपने फेवर का देख के ही डिसीजन लूंगा। सामने वाला भी अपने लिए बेस्ट सोच के ही कोई ना कोई डिसीजन लेगा। आपके बारे में जितना आप जानते हो, या मेरे बारे में जितना मैं जानती हूँ, कोई दूसरा इंसान नहीं जानता है सिवाय डिवाइन के। तो हमें डिवाइन लेवल पे कनेक्ट रह के उन चीजों को हील करने की रिक्वेस्ट करनी है। खाली रिक्वेस्ट के अलावा हम लोग किसी को हील नहीं कर सकते हैं। हम खाली प्रे करने के अलावा किसी को हील करने का अगर हम सोचे कि मैं आपको हील करूंगी, तो मैं आपको हील नहीं कर पाऊंगी। आपको हील
सिर्फ आप ही कर पाओगे। आपके इमोशंस को आप ही सही डायरेक्शन में डाल पाओगे। खाली आपको एक पाथ दिखा दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, ये साइन होता है कि हाँ आपको पाथ दिखाया जा रहा है, इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ये इस चीज के बारे में मोर नॉलेज लेके इसको लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो चीज आप देखो। एंड दैट्स मोर देन देन इनफ। जितना आप करोगे ना, ये काफी है चीजों को सही करने के लिए। You are 100% responsible for your world and the powerful and that's a powerful place to be। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी दुनिया को लेके, आपकी सराउंडिंग की दुनिया को लेके, आपके माइंड की जो आपकी इमेजिनेशन का आपने दुनिया बना रखी है अपने दिमाग में कि लाइफ कैसे होती है, लोग कैसे होते हैं, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है? आपकी। तो आप इसको एक पावरफुल प्लेस बनाओ कि मैं इसमें सिर्फ पॉजिटिव चीजें रखना पसंद करूंगा। नेगेटिविटी जितनी भी है, जिस टाइप की भी है, मैं उसको क्लीन करने की कोशिश करूंगा और करूंगा। सिंपल सी चीज। वट डज 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन इन होपोनोपोनो? क्या बता रहा है ये, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 100%? दैट एवरीथिंग यू थिंक, फील एंड एक्सपीरियंस, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो या फील कर रहे हो या आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो आपके इनर वर्ल्ड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके आपके इनर वर्ल्ड में आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी है वो उसी का रिजल्ट है कि आप वैसा फील कर रहे हो। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं आ जाती, ना ही किसी और का फॉल्ट होता है, वो हमारी ही फीलिंग्स होती हैं। यू अंडरस्टैंड दैट योर इनर वर्ल्ड शेप्स योर आउटर वर्ल्ड। आप समझना स्टार्ट करोगे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि जो आपकी अंदर की दुनिया है वो आपकी बाहर की दुनिया का भी निर्माण कर रही है। अगर आप अंदर से पीस में नहीं हो तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन निकलेगा, गुस्सा निकलेगा किसी के ऊपर, छोटी छोटी बातों पे हम चिल्ला देंगे। ये सिंपल से हमारे एक्शंस हो जाते हैं। बट अगर हम पीस में हैं तो अगर सामने वाले ने कोई मिस्टेक भी किया है, हम 2 मिनट का पॉज लेंगे और उस सिचुएशन में काम हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग क्या हुआ? हमने कोई नेगेटिव कर्म नहीं क्रिएट किया, किसी को हमने ऐसी वाइब नहीं दी कि हाँ मैं एंगर में हूँ। मेरे साथ अगर मैं काम सिचुएशन में रहूंगी, आप कोई इंसान खुल के अपनी बात बताना पसंद करेगा। अगर मैं एंगर इशू में रहूंगी, क्या होगा? सामने वाला डरेगा कि नहीं ये पता नहीं क्या रिएक्शन दे देगी, या ये इंसान पता नहीं क्या रिएक्शन दे देगा मेरे को इससे इसके साथ कुछ शेयर नहीं करना है, मेरे को इससे चीजें हाइड करनी है। मोस्टली यही होता है कि लोग हाइड कब करते हैं? जब सामने वाले को आपसे डर हो कि आपका रिएक्शन पता नहीं क्या होगा। बट जब आप एक लिसनिंग स्टेट में हो, काम स्टेट में हो, तो कोई भी इंसान आपके साथ आके अपनी कुछ भी फीलिंग आपके साथ शेयर कर सकता है। बट आपको उसको उसमें लिसनिंग फॉर्म में आना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसकी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डज दिस मीन आई शुड ब्लेम माई सेल्फ फॉर एवरीथिंग बैड? क्या मुझे ब्लेम करना चाहिए खुद को जितनी भी बैड चीजें हो रही हैं? अगेन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ अवेयरनेस और हीलिंग की टेक्निक है। जब हम कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, यू आर टेकिंग अ लविंग स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग पेनफुल एनर्जी एंड मेमोरीज। जब आप आई एम सॉरी और प्लीज फॉरगिव मी बोलते हो तो आप क्या कर रहे हो? स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हो। जो भी आपने पेनफुल मेमोरीज कलेक्ट करके रखी है, ये इमोशंस कलेक्ट कर रखे हैं, तो उनको आप क्लियर करने के लिए आप स्टेप ले रहे हो अगला। तो इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं है। अवेयरनेस आ रही है, हीलिंग आ रही है, ग्रेटिट्यूड की बात है। बट अबाउट अदर्स पीपल, शुड आई ट्राई टू फिक्स और चेंज देम? मुझे उनको चेंज या फिक्स करने की जरूरत है? हमें कोई जरूरत नहीं है किसी को भी फिक्स करने की या चेंज करने की। जो इंसान जैसा है उसे वैसा रहने दो। आप क्या कर सकते हो? गाइडेंस दे सकते हो, बट किसी को चेंज नहीं कर सकते हो आप। किसी इंसान को अगर रिलेशनशिप की बात है, तो कोई इंसान जैसा है हमें उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसमें अगर हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो वो एक रिलेशन नहीं रह जाता, वो एक बिजनेस बन जाता है कि हाँ मैं तुम्हें ये चीज बोल रहा हूँ तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, या मैं तुम्हें ऐसी चीज समझा रहा हूँ तो ये तुम्हें उसके अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। तो वो हमने यहाँ पे व्यापार नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है, हमने रिलेशन में क्या करना है? लव करना है, लव देना है, लव रिसीव करना है। ये हमारा मेन पर्पस होना चाहिए किसी भी रिलेशन में। चाहे वो आपके मदर फादर हैं, चाहे वो आपके भाई बहन हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, कोलीग्स हैं, या नेबर्स हैं, तो आपको क्या करना है? एनर्जी की फॉर्म में लव कंसीव करना है। क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है। हर इंसान का जो थॉट प्रोसेस है
वो उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसके समझ के अकॉर्डिंग डिवाइन ने उसको चीजें दे रखी हैं। तो आप अंडरस्टैंड करो उन चीजों को। आपकी जो पीस है और हीलिंग है नेचुरली उन लोगों को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। अगर आप काम स्टेट में हो और उसको देख के अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव स्टेट में है, आप क्या करो, मेंटली सिर्फ उसको देख के आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसलिए नहीं कि वो नेगेटिव स्टेट में है, इसलिए कि आप उसके बारे में जो सोच रहे हो वो एक नेगेटिव फॉर्म में सोच रहे हो कि ये पेनफुल स्टेट में है। ये अंडरस्टैंड करना। अगर आप किसी इंसान को देख रहे हो जो एक पेनफुल सिचुएशन में है, तो आप भी इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली क्या कर रहे हो, उसको एनर्जी दे रहे हो वैसी वाली कि हाँ ये पेन में है। ठीक है, तो आपको वैसी एनर्जी उसको नहीं देनी है। आपको आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू पहले किस चीज के लिए करना है, कि मेरे अंदर जो ये फीलिंग तुम्हारे लिए आ रही है दैट यू आर इन अ पेनफुल सिचुएशन, उसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। आफ्टर दैट आप उसको ब्लेस कीजिए। तो वो हीलिंग आपकी सामने वाले को रिसीव होगी एनर्जी के फॉर्म में। आप उसको हील नहीं कर पाओगे, बट उसकी जो एनर्जी है वो अपने आप को हील करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगी। वट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या बेनिफिट मिलेगा हमें? यू फील मोर एम्पावर्ड, पीसफुल एंड इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ के कंट्रोल में रहोगे, कोई भी सिचुएशन है आप हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लोगे जो आपको प्रॉफिट लॉस करवाएंगे आगे। ठीक है, या आप पीसफुली होकर चीजों को लेंगे, आप विक्टिम प्ले नहीं करेंगे। अ, आप अपनी यू यू एंड स्टार्ट क्रिएटिंग रियल पॉजिटिव चेंज फ्रॉम विद इन, और अंदर से जो रियल चेंज आपको चाहिए, जो मेन पाथ है एक ह्यूमन लाइफ का, और जो पॉजिटिविटी इंसान में होनी चाहिए, आप उसको स्टार्ट कर दोगे रिसीव करना, ये क्रिएट करना। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज दे कैन आस्क मी। इसमें कुछ अगर आपको समझ में ना आया हो, या इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आपके माइंड में हो किसी सिचुएशंस को लेके, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मेरे को यस और नो में। नो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज सॉरी। सॉरी किस चीज के लिए हम बोलें? दिन में जब भी कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है, नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव सिचुएशन हम देख रहे हैं, उस चीज के लिए हम सॉरी फील करते हैं। हम गिर जाते हैं, छींक मारते हैं, तो हम सॉरी बोलते हैं। ठीक है, तो वो सॉरी क्यों बोलते हैं? फॉरगिव एवरी मोमेंट। जितनी भी मोमेंट आपकी लाइफ में हो रही हैं उनको आप फॉरगिव करोगे तो आप क्या करोगे, खुद को फ्री करोगे। आप कर्म के बंधन में बंधना बंद हो जाएगा आपका। प्रेजेंट मोमेंट पे आप एक कर्म तो कर रहे हो, बट किसी नए कर्म में नहीं फंस रहे हो। ठीक है, आपने जो कर्म अभी तक किए हुए हैं, संचित जो हमारे कर्म होते हैं वो तो हमारे पास स्टोर हैं, उनके हमें रिजल्ट मिलने हैं। बट प्रेजेंट मोमेंट पे जो हम कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमें कोशिश करनी है कि खुद को जितना हम फ्री रख सकते हैं उतना फ्री रखना है। एवरी मोमेंट इज अ चांस टू लेट गो एंड हील। सारी मोमेंट जितनी भी हैं वो एक मौका होता है लेट गो करने का और हील करने का। यू कैन फॉरगिव एनीवन, किसी को भी आप फॉरगिव कर सकते हो एट एनी टाइम, किसी भी टाइम। जब भी आपको याद आया उस टाइम पे आप उसको फॉरगिव कर सकते हो। अगर आपने आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन याद आ रहा है जिसके साथ आपका सिनेरियो अच्छा नहीं रहा है, चाहे आप लिंक में हो चाहे नहीं हो, चाहे उसने आपका बुरा किया है चाहे आपने उसका बुरा किया है, क्योंकि ह्यूमन का नेचर है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने आज तक लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं किया है। अनकॉन्शियसली जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं थी, हमने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया होगा। तो एक्सेप्टेंस लेके आओ चीजों की, डिनाइल में नहीं रहना है हमें कि, और माफ करने की कोई लिमिट नहीं हो सकती है। कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है उसको आप वन टाइम में क्लीन कर लोगे, कुछ के लिए आपको 100 टाइम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो बार बार घूम के आपके लाइफ में सिचुएशन सिमिलर आती रहेंगी। और सेकंड, हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन सिमिलर अगर बार बार आ रही है, इट मीन्स वो हमें कुछ लेसन देना चाह रही है जो हम लर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जब सिचुएशन को ग्रेटिट्यूड में आके देखोगे तो आप समझ पाओगे कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, और जब आप उस मिस्टेक को करेक्ट करते हो तो वैसा सिनेरियो लाइफ में दोबारा रिपीट नहीं होता है। Forgiveness is not just about the other person, it's a gift you give yourself. Forgiveness हम सामने वाले को नहीं माफ कर रहे, हम खुद को माफ कर रहे हैं कि हम उस एनर्जी पे थे, उस वाइब पे थे कि हमारा कनेक्शन हुआ।
या मे भी मेरे संचित कर्म के द्वारा मैंने तुम्हें कनेक्ट किया दोबारा से। अब मैं दोबारा से कोई कर्म बंधन नहीं क्रिएट करना चाह रहा, क्योंकि एट द टाइम एंड टाइम ह्यूमन लाइफ का मेन पर्पस क्या है? लिबरेशन है, मोक्ष है। ह्यूमन लाइफ बहुत रेयर मिलता है। 84 लाख योनि के बाद कहा जाता है कि ह्यूमन लाइफ मिल रही है। तो इतने योनियों से निकलने के बाद अगर आपको ह्यूमन लाइफ मिली है तो वो किसी हायर पर्पस के लिए मिली है। जो काम ह्यूमंस कर रहे हैं वो बाकी स्पीसीज नहीं कर पा रही हैं। हालांकि बाकी स्पीसीज में भी इक्वल ब्रेन है उनमें, बट उनमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। उनमें नया कर्म कैसे संचित करना है, संचित कर्मों को कैसे हैंडल करना है, नया कर्म कैसे क्रिएट करना है, ये पावर उनके हाथों में नहीं है। वो नेचुरल तरीके से उनका खाना पीना सोना फैमिली जो चीजें हैं उनको वो शेयर कर रहे हैं। बाकी कॉन्शियसली वो चीजें एक्शन में नहीं ले पाते। खाली एक ह्यूमन के पास वो पावर होती है कि आप कॉन्शियसली चीजों को देख पाओ, समझ पाओ और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो ह्यूमन लाइफ जो है वो एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। सबसे पहले तो इस लाइफ के लिए थैंक यू है कि हम ह्यूमन फॉर्म में हैं और हम अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड जब हम फॉरगिव करना स्टार्ट करेंगे तो हम खुद को रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। हम साथ में बोझा बर्डन कैरी करके नहीं चल रहे हैं, हम खुद को फ्री रख रहे हैं। तो फ्री होगा इंसान तो क्या होगा? फास्ट मूवमेंट होगा। बट अगर हम सारी चीजों को होल्ड करके चलेंगे तो क्या होगा? हमारा जो स्टेपिंग है वो स्लो हो जाएगी। तो हमें फास्ट चलना है या स्लो चलना है, चॉइस हमारे हाथ में है। चॉइस हम लोगों ने करनी है कि कैसे करना है। इट इज अ वे टू फ्री योर हार्ट फ्रॉम पेन एंगर एंड सैडनेस। और ये तरीका भी है खुद के हार्ट को फ्री रखने का। ना ही कोई दर्द होगा। दर्द देखो फिजिकल होता है सिर्फ एक। जो दिल का दर्द होता है वो दिल का दर्द नहीं होता, वो दिमाग का दर्द होता है, जो विचार हम लोग कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, अननेसेसरी सोच रहे हैं। ठीक है, हमारी जरूरत के नहीं है फिर भी सोच रहे हैं। सोचो। तो वो चीज क्या करेगी? वो इंटरनल पेन तो फिर हमें देगी। बट एक्चुअल पेन जो होता है वो कहाँ होता है? जब आपकी फिजिकल बॉडी में कोई पेन हो रहा है, फिजिकली कोई पेन हो रहा है। पेन सिर्फ वही होता है। ये जो इंटरनल पेन की हम बात करते हैं ये कुछ नहीं होता, सिर्फ दिमाग के विचार हैं जो हमें वैसा बता रहे हैं कि हमें पेन हो रहा है। हालांकि हमें पेन नहीं हो रहा होता है, बस ओवर थिंकिंग चली होती है। एंगर होता है हमारा, सैडनेस होती है, दुख होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ना के बराबर है वैसे तो। ये चीजें हो हैं, पार्ट हैं हमारी लाइफ का। एंगर होना भी चाहिए बट सही डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, सैडनेस होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, पेन होना चाहिए, सही डायरेक्शन के लिए होना चाहिए। फिजिकल पेन जब आप कंज्यूम करते हो तो वो आपको इमोशनली और मेंटली ग्रोथ करवाता है। जब भी आप कोई फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो एक्सरसाइज ही नहीं करता, इमीडिएट वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेगा, उसकी बॉडी क्या होगी? रिएक्शन देना स्टार्ट कर देगी, पेन स्टार्ट हो जाएगा। बट वो पेन क्या कर रहा है? उसके मसल्स ग्रो करवा रहा है। उसकी माइंड में जो चीज थी कि मेरे से ये पेन बर्दाश्त नहीं होगा, उस बिलीफ सिस्टम को ब्रेक कर रहा है। आपको इमोशनली स्ट्रांग बना रहा है। तो वो पेन आपके लिए यूजफुल है। एंगर अगर आप अपनी लाइफ में देखते हैं, एंगर अननेसेसरी चीजों के ऊपर, किसी के ऊपर भी गुस्सा कर देना, अगर वो चीज कर रहे हो यूजफुल नहीं है। बट आपके अंदर एंगर है कि मेरे को लाइफ में सक्सेस करना है और मैं दिन के 24 घंटों में से 16 घंटे मेरे को प्रैक्टिस करनी है, बट मैं 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस चीज के ऊपर खुद के ऊपर एंगर करो। वो वर्ती है आपका करना। सैडनेस क्या है? दुख हो रहा है, दुख होना चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई इंसान हमें हर्ट कर गया या किसी इंसान ने हमें छोड़ दिया, या मेरा ये पर्टिकुलर एरिया में मैं ये चीज काम कर रहा हूँ और वो मेरे को वहां पे सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो उसमें सैडनेस हम फील करने लग पड़ते हैं। सैडनेस उसमें नहीं होनी चाहिए। सैडनेस होनी चाहिए कि हम अपने हायर पर्पस के साथ कितने टाइम से डिस्कनेक्टेड हैं। हम हमारे अंदर जो पावर है हम उसके बारे में जानते ही नहीं है। तो उस चीज का हमें दुख होना चाहिए कि वो हमें पता नहीं थी। बट क्या है, एट एंड वो हमें पता लग रही है, उसके बारे में हम अवेयर हो रहे हैं। तो ग्रेटफुल हो जाओ। सिंपल। वी ऑल आर कनेक्टेड, हम सभी कनेक्टेड हैं। देर इज नो रियल सेपरेशन बिटवीन यू एंड अदर पीपल, एनिमल्स एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। आपके बीच में बाकी लोगों के बीच में, जानवरों के बीच में, पशु पक्षी जितने भी हैं आपकी सराउंडिंग में, या जितने भी वर्ल्ड की स्पीसीज आपके सराउंडिंग में हैं, आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है। दैट्स वाई फॉरगिविंग अदर इज आल्सो अ वे ऑफ हीलिंग योर सेल्फ। इस करके अगर हम दूसरों को भी माफ कर रहे हैं तो इट मीन्स हम खुद को माफ कर रहे हैं, और वो हीलिंग का एक प्रोसेस कंसिडर हो जाता है। If someone or something has deeply hurt you and you find it hard to forgive, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है
और अब आपके लिए मुश्किल हो रहा है उसको माफ करना, तो आपको उस चीज में पैनिक नहीं होना कि मुझे माफ नहीं कर पा रहा हूँ। जस्ट आपने स्टार्ट करना है उस चीज को फर्स्ट। ठीक है, आपको रश करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने दिल से उसको चूज करो कि मैं उसको फॉरगिव करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट थॉट आपके अंदर होना चाहिए। आप नहीं कर पा रहे हो वो एक सेपरेट थिंग है, बट आपके मन में विचार तो होना चाहिए कि मेरे को उसे माफ करना है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, या मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार उसकी एनर्जी के साथ क्लैश करूं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको फॉरगिव करोगे, लेट गो करोगे, तभी वो चीज आपके सामने से या सिचुएशन या पर्सन जो होगा डिसअपियर होगा। ठीक है, डिसअपियर होने का मतलब मेरा दुनिया से डिसअपियर होने का नहीं है, बट मतलब आपके कांटेक्ट में उसका कांटेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, जितनी सिचुएशंस में आप इंटरेक्शन कर रहे हो वो सिचुएशंस खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। स्पेशली द पीपल और इवेंट्स दैट कॉज्ड यू डीप पेन। जितने भी लोगों ने आपको या जितनी भी सिचुएशंस से आपको दुख पहुंचा है, आपके माइंड में नेगेटिव सिनेरियो बना है, उन चीजों को याद करो और कोशिश करो कि मैं इसे फॉरगिव करना स्टार्ट कर रहा हूँ। And this means that you are saying what happened was okay. It means you are choosing peace over pain. जब आप ये बोलोगे कि जो भी हुआ है ठीक है, आई एक्सेप्ट देयर थिंग, तो इट मीन्स क्या, जो पेन, जिस पेन की हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव पेन की जो हम बात कर रहे हैं, उस पेन की जगह हम क्या होगा, पीस लेना स्टार्ट कर देंगे, हमारे अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी। फाइंड अ क्वाइट मोमेंट, सिट कामली एंड ब्रीथ। आराम से बैठो किसी भी लोकेशन पे। ठीक है, अपनी ब्रीथ पे फोकस करो। नोटिस करो, आप पहले तो सबसे पहले आज आप लोगों ने एक एक्सरसाइज करनी है खुद के साथ। 1 मिनट का टाइमर लगाना है और देखना है आपने कि आप कितनी बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हो 1 मिनट में। अगर ये 14 अबव है, 14 और 20 के बीच में है, या 20 के अबव है, तो आप इमोशनली, मेंटली या फिजिकली आप अनहेल्दी हैं। आप इस चीज को एक्सेप्ट करके चलना। ठीक है, किसी भी वे में अनहेल्दीपन हो सकता है आपका। मेंटली लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब जिसे हम कहते हैं। इमोशनली जब इंसान होता है तो वो भी एक मेंटल कंसिडरेशन उसकी वैसी हो जाती है कि नहीं, वो अपने अपने से ऊपर जो है वो चीजों को समझने की क्षमता ही नहीं रखता है। ठीक है, फिजिकली आप खुद को पेन, लाइक मतलब फिजिकली आप अनहेल्दी हो सकते हो। उसके बारे में आप चाहे अभी नॉलेज हो चाहे ना हो, चाहे वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो, बट कोशिश करो दिन में कुछ टाइम के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करने की। इस ब्रीदिंग को, पैटर्न को 14 या 10 के बीच में, या 15 या 16 भी चलेगा, बट 20 के सराउंडिंग में ये नहीं होना चाहिए। इसको कम करने की कोशिश करनी है। तो जब भी आप मेडिटेट करो, 1 मिनट के लिए अपनी सांस पे फोकस रखो, जितना स्लोली हो सकता है आप ब्रीद इन करो, एंड स्लोली आप इसको एक्सहेल करो। और जब आप मेडिटेट करो तो से आई फॉरगिव यू एंड आई सेट दिस फ्री। मैं इस सिचुएशन को या इस पर्सन को मैं माफ करता हूँ, और मैं उससे रिलेटेड जो भी सिचुएशन है उसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। अपने अंदर से रिलीज कर रहा हूँ, अपना माइंड से रिलीज कर रहा हूँ, अपनी फिजिकल वर्ड से रिलीज कर रहा हूँ। कीप डूइंग इट अंटिल यू फील लाइटर एंड मोर एट पीस। जब तक आप पीसफुल स्टेट में नहीं आ जाते हो, प्रेजेंट मोमेंट पे, तब तक आप उसको परफॉर्म करो। नेक्स्ट डे अगर आपको फिर वो चीज परेशान कर रही है, फिर उस चीज के ऊपर परफॉर्म करो। उससे नेक्स्ट डे फिर करिए, फिर करो। ये लाइक एक चीज को, कोई भी चीज आपकी लाइफ में आई है वो टेम्परेरी है, सिचुएशन टेम्परेरी है। बस उस सिचुएशन ने आपके ऊपर कितना छाप छोड़ा हुआ है, अपने अपना इफेक्ट कितना छोड़ा हुआ है, वो मैटर करता है। तो वो जितना गहरा होगा वो क्लीनिंग के लिए, हीलिंग के लिए थोड़ा टाइम लेगा। और अगर वो उतना गहरा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, तो वो क्या होगा, वो कुछ ही टाइम में हील हो जाएगा। वन टाइमिंग में भी हील हो जाती हैं चीजें, 10 टाइम्स में भी हील हो जाती हैं। तो ये मिनिमम टाइम है उन चीजों का। देर आर द थिंग्स इन योर लाइफ दैट फील अनफिनिश्ड। कुछ चीजें हमारी लाइफ की होती हैं जिन्हें हमने कंप्लीट नहीं किया होता है, अनफिनिश्ड छोड़ा होता है, और जो हमें परेशान कर रही हो सकती हैं। टेक टाइम टू क्लीन देम अप एंड लेट देम गो। उनको भी क्लीन करने की कोशिश करनी है और लेट गो करना है। Forgiveness closes those emotional door and allows new peace to enter। जब हम फॉरगिवनेस स्टार्ट करेंगे तो जो पेन के या जो नेगेटिव इमोशंस के जो डोर हमने खोल रखे हैं अपने जीवन में, वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनकी जगह नए डोर ओपन करते हैं, जिनसे क्या एंटर करता है हमारी लाइफ में, पीस एंटर करता है, ग्रेटिट्यूड एंटर करता है, फॉरगिवनेस एंटर करती है। ये सारी चीजें जो हैं वो एंटर करना स्टार्ट कर देती हैं।
द नेक्स्ट इज फॉर गिविंग योर सेल्फ, खुद को माफ करना। फॉरगिविंग स्टार्ट सॉरी फॉरगिवनेस स्टार्ट विद इन यू। कहाँ से स्टार्ट होगी माफी? आपके अंदर से स्टार्ट होगी। ठीक है, जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे किसी भी सिनेरियो में सिंक करने के लिए, या किसी पर्सन के साथ सिंक करने के लिए, या सिचुएशन के साथ सिंक करने के लिए, या अपने माइंड सेट को लेके, तो आप बाहर की चीजों को फॉरगिव नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? खुद से करनी है पहले तो। वेन यू फॉरगिव अदर्स समथिंग ब्यूटीफुल हैपन्स। जब आप दूसरों को माफ करोगे तो कुछ ना कुछ तो ब्यूटीफुल आपके लाइफ में होगा। यू ऑल्सो स्टार्ट टू फॉरगिव योर सेल्फ वेदर यू रियलाइज इट और नॉट। जब आप दूसरों को माफ करना स्टार्ट कर दोगे तो इसके साथ क्या होगा, आप खुद को भी माफ करना स्टार्ट करोगे, चाहे आप उस चीज को रियलाइज करो चाहे ना करो। दैट इज बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स इनसाइड यू। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जितनी भी सिचुएशंस आप लोगों ने अट्रैक्ट किया हुआ है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हमारे अंदर से स्टार्ट हुआ था, हमारी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ स्टार्ट हुआ, हमारे बिलीव्स के साथ स्टार्ट हुआ। तो आप क्या करो, जब किसी को भी हील कर रहे हो उसके साथ साथ आप खुद को भी हील कर रहे हो। अनकॉन्शियसली तो आप कर ही रहे हो, उसको कॉन्शियसली आप कंसीडर करो कि मैंने खुद को भी माफ किया है अपने आप को ऐसी सिचुएशन में सिंक करने के लिए। There is no real difference between you and others. We all are connected. So when you forgive someone else, your own heart start to heal. जब आप दूसरों को करोगे तो आपका हार्ट खुद हील स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं एनर्जी लेवल पे। यू डोंट हैव टू फॉलो एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करने की इसमें जरूरत नहीं होती है। फॉरगिविंग इज ए टेक्निक है कि आप जब स्टार्ट कर दोगे किसी और को भी तो आप ऑटोमेटिकली खुद को भी माफ करना स्टार्ट कर दोगे। ये अपने आप हो चलेगा प्रोसेस। इधर वे द प्रोसेस वर्क बोथ वे। दोनों तरीकों से काम करेगा। आप चाहे खुद से स्टार्ट कर लो चाहे सामने वाले से स्टार्ट कर लो। इट्स लाइक अ सर्कल। ये भी सर्कल की तरह है, ये भी कर्मा का एक सर्कल की तरह है। When you let go of anger, guilt or blame towards someone else, your own burden also becomes lighter. जब आप किसी के बारे में अपने गिल्ट को, अपने ब्लेम को या अपने एंगर को रिलीज करोगे तो आपने अपने अंदर जो बर्डन कैरी किया हुआ था, उस वो एंगर जो कैरी किया हुआ था या उसके रिलेटेड जो गिल्ट कैरी किया हुआ था, आपने क्या किया, उसको भी रिलीज किया। तो ऑटोमेटिकली आप लाइट फील करोगे, आपकी एनर्जी लाइट फील करेगी। बट अगर आपने उसको होल्ड किया हुआ तो क्या होगा? हैवी फील रहता है, हमारी वाइब्रेशन स्लो हमें लगती हैं, हम अननेसेसरी बीपी डाउन हो रहे होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस वे में। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी, हमें फॉरगिव करना स्टार्ट करना है, खुद को भी और दूसरों को भी। अगर हम लो भी फील कर रहे हैं वो भी हम खुद को एक एनर्जी दे रहे हैं कि मैं लो फील कर रहा हूँ, उसी टाइम पे उस एनर्जी को बोलो हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। आप देखना आपकी एनर्जी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी इंस्टेंटली। ये स्विच वर्ड्स जो काम करते हैं। ठीक है, किसी भी एनर्जी को आप चेंज कर सकते हो इंस्टेंट स्विच वर्ड्स की हेल्प से। वो हम अभी बात करेंगे बाद में। कमल जी प्लीज हाँ। माइक म्यूट कर लीजिए। द मोर यू फॉरगिव द मोर पीसफुल एंड फ्री यू फील। जितना आप फॉरगिव करोगे उतना पीसफुल स्टेट में रहोगे, उतना फ्री फील करोगे। क्योंकि हमने किसी को बांध नहीं रखा है भाई, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे तो हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तो जिसने बुरा किया हमारे साथ या जिसने हमें हर्ट किया या जिस सिचुएशन की वजह से हम परेशान हो रहे हैं, हम तो उसको भी फॉरगिवनेस कर रहे, उसको भी फॉरगिव कर रहे हैं। तो हमारे पास होल्ड करने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो हम क्या हो गए, फ्री हो गए बिल्कुल। Forgiveness isn't just a nice thing to do, it's a powerful tool for healing. और माफ करना या माफी मांगना ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत पावरफुल चीज होती है। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है सॉरी बोलने की। गलती होते हुए भी सॉरी बोलने की बहुत कम लोगों में कैपेसिटी होती है, क्योंकि वो बिहेवियर ही नहीं बन पाया होता है, वो परवरिश वैसी नहीं हो पाई होती है कि आप एक्सेप्ट कर पाओ। गिल्ट में रह जाते हो कि मैं कैसे सॉरी बोलूंगा, मैं क्यों बोलूं, उसको बात करनी चाहिए। ये छोटी छोटी सिचुएशन है जो हम लोग कर देते हैं अपनी लाइफ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सिमिलर ही होंगे इसमें। वी विल टेक वन मोर स्टेप, दैट इज लूज। लूज मतलब क्या? रिलीज करो, लूज कर दो। जैसे हमने किसी धागे को या रस्सी को कस के पकड़ा हुआ है, उसको लूज छोड़ दो।
पकड़, कस के पकड़ा हुआ है, क्या कर रही है वो, हमें हर्ट कर रही है। लूज छोड़ेंगे क्या होगा, उसको आगे खिसकना होगा, वो आगे खिसकेगी, उसको सेम पोजीशन पे रहना होगा, सेम पोजीशन पे रहेगी। ये अगर आपने उसके साथ मूवमेंट लेनी होगी तो एक लूज इसमें जो आप मूवमेंट ले पाओगे, वो जबरदस्ती पकड़ के जो खींचोगे तो हर्ट के साथ होगा, और लूज हाथों में वो इजिली आप उस चीज को परफॉर्म कर पाओगे। और लेटिंग गो मतलब फ्री छोड़ दो उस चीज को, कि हाँ ठीक है, अगर हाथों में रुकनी होगी तो रुकेगी, निकलनी होगी तो निकल जाएगी। छोड़ दो इस चीज को, हमने कंट्रोल नहीं करना है किसी भी सिचुएशन को, चाहे लूज किसके लिए आप कंसीडर कर लो, रस्सी किसको कंसीडर करो, सिचुएशंस को कर लो, रिलेशंस को कर लो, या एबीसीडी जो भी आप जिस भी चीज के ऊपर आप मैनिफेस्टेशन या अपन अपन परफॉर्म कर रहे हो या हील करना चाह रहे हो किसी भी एरिया को, आप उसको कंसीडर करके चल सकते हो। वेन यू फॉरगिव, यू आर सिंपली लेटिंग गो। जब आप माफ करते हो उसका मतलब क्या है कि आप लेट गो कर रहे हो चीजों को। यू स्टॉप होल्डिंग ऑन टू पेन, एंगर एंड द नीड टू डिसाइड इफ समथिंग इज राइट और रॉन्ग। आप क्या करोगे, जो पेन, एंगर या हमारे अंदर आदत होती है किसी चीज को सही बताने की या किसी चीज को गलत बताने की, वो सारी होल्डिंग्स जो है क्या है, उसे बंद कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। एंड यू स्टॉप गेटिंग स्टक इन योर थॉट्स एंड जजमेंट। जो भी हम जजमेंट लेते हैं किसी सिचुएशन को लेके, या जो भी हम अपने विचार रख रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके, हम क्या करेंगे, उनके बीच में फंसना बंद कर देंगे, अपना बिलीफ बनाना बंद कर देंगे। मतलब किसी सिचुएशन, एक सिचुएशन को 10 लोग देख रहे हैं, 10 लोग अपने अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, तो कंपल्सरी नहीं कि जिस नजरिए से मैं देख रही हूँ या आप देख रहे हो वो फैक्ट है। फैक्ट कौन सा है, 10 लोगों के लिए 10 लोगों की जो नजरिया है वो फैक्ट है। तो किसी भी चीज के बारे में हमने जजमेंट नहीं रखना है, ना ही उस अपने विचारों में स्टक हो जाना है कि नहीं जो मैंने सोचा वही फैक्ट है। कंपल्सरी नहीं होती ये चीजें। इंस्टेड यू एक्सेप्ट बट हैपेंड एंड यू चूज टू रिलीज इट। इंस्टेड जो क्या आप सिचुएशन, आप किसी भी सिचुएशन को देख रहे हो उसको आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दोगे, आपके समझ में जो भी आया है ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया और उसको लेट गो कर दिया। ठीक है, किसी और की समझ में, किसी और के वे में आया है, वो अपने समझ के अकॉर्डिंग समझेगा, लेट गो करेगा। तो हमें होल्ड नहीं करना है अपने विचारों पे या अपनी जजमेंट्स के ऊपर। बाय फॉरगिविंग यू सेट योर सेल्फ फ्री एंड यू फील मोर पीसफुल इनसाइड, एंड व्हेन यू लेट गो दिस, you also release the negative energy or karma, both your own and the other person's. It is like healing for both sides done in the present moment. जब आप लेट गो करना स्टार्ट करोगे, फॉरगिविंग स्टार्ट करोगे, तो आप क्या करोगे, कर्मा को भी लेट गो करना शुरू कर रहे हो। ठीक है, और ये खाली आपके एंड से नहीं होगा, ये दोनों एंडिंग के लिए हो जाएगा। सोचो, आप अपना भी बेनिफिट कर रहे हो, सामने वाले का भी बेनिफिट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के साथ कनेक्शन में आते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस वाला, फॉर एग्जांपल मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है या थी, ठीक है, अब एक सिचुएशन ऐसी आई कि हम दोनों को सेपरेट होना पड़ा। मेरे अंदर फीलिंग्स रह गई उसके लिए कि नहीं मुझे और टाइम स्पेंड करना था, अच्छी फीलिंग है, बट क्या हो गया, एक वाइब्रेशन मैंने छोड़ दी, मैंने कर्मा छोड़ दिया कि मेरे को क्या करना था, टाइम स्पेंड करना था। अब मेरे संचित कर्म के अकॉर्डिंग वो मेरे को इसी लाइफ में मिलेगा टाइम, या मेरे को नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, वो मुझे नहीं पता। बट मैंने क्या किया, अनकॉन्शियसली मैंने कर्मा क्रिएट कर दिया। सेम हम नेगेटिव सिचुएशन के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, किसी ने मेरे को हर्ट किया, भगवान तुम्हें देखेगा या तुम भुगतोगे तो मैं देखूंगी, ये ऐसा रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया, फिर हमने कर्मा कनेक्ट कर लिया, मुझे नहीं देखना किसी को। ठीक है, मैं रिलीज कर रही हूँ हर इमोशन को, हर इंसान को। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी हायर ग्रोथ करनी है। अगर मैं 100 लोगों को साथ में लेके चलूंगी कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो क्या होगा, मैं जो ग्रोथ करना चाह रही हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे क्या करना है, लेट गो करना है। उनको भी लेट गो करना है कि मेरे साथ नहीं बनना है, और मैंने खुद को भी वो चीज रिमाइंड करनी है कि मुझे किसी के साथ अपने कार्मिक कनेक्शंस को होल्ड करके नहीं चलना है। तो ये चीज हमें क्या करेगा, लिबरेशन में हेल्प करती हैं ये चीजें। देखो, ग्रोथ तो हमें करना है ह्यूमन लाइफ का एट द एंड, चाहे आप इस जन्म में इस चीज को कंसीडर कर लो, चाहे आप नेक्स्ट जन्म जब भी आपको ह्यूमन लाइफ में मिलेगा आप तब कंसीडर करो। आपको ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी कि हमारा जो हायर पर्पस है वो लिबरेशन है, वो मोक्ष है, या अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है। एनर्जी लेवल पे हम कौन हैं। ठीक है, किसी भी कल्चर में आप देखो, इंसान जब मरता है
जैसे हम हिंदू कल्चर की अगर बात करें तो क्या होता है, 13वीं रखी जाती है। जब इंसान मर गया तो 13वीं किस चीज की, किस पावर के लिए रखी जा रही है? सोल के लिए रखी जा रही है ना। तो वो सोल का काम क्या है, वो सोल क्या है, उसका हायर पर्पस क्या है, क्यों उसकी शांति के लिए वो चीजें की जा रही है, वो शांत क्यों नहीं है? तो वो चीजें क्या होती है, ये चीजें अंडरस्टैंड करने वाली है कि नहीं, हमारा जो पर्पस है मोक्ष के लिए अगर हम चले जाते हैं तो दैट इज द ग्रेटेस्ट गुड फॉर अवर सेल्फ। तो उस चीज में आप लोगों को अपना स्टेप लेते रहना है। बाकी आप अपनी लाइफ स्पेंड कीजिए, अपने रिलेशंस निभाइए, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम देखिए, बट वो सारी चीजें क्या है, मटेरियल है। एनर्जी लेवल पे आपका पर्पस कुछ और है। तो उस पर्पस को माइंड में कंटिन्यूसली रखो कि मुझे अपने कर्मा को भी लेट गो करना है साथ के साथ। एंड letting go through forgiveness means you are not carrying the weight anymore. You feel lighter over time. This peaceful feeling becomes more easier and more natural. टाइम के साथ साथ क्या होगा, ये जो फीलिंग्स है ये आपकी हैबिट बन जाएगी लेट गो करने की। आपको बार बार इसको प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। आप लाइट फील करोगे हर सिचुएशन में, आप फॉरगिव करना स्टार्ट करोगे। क्यों? क्योंकि हमारा हायर पर्पस कुछ और है। एंगर, गिल्ट, रिग्रेट हो गया, या फिर किसी के साथ बदला रखने की भावना, ये चीजें हमें कहीं पे ग्रोथ नहीं करवाती हैं। तो हमें क्या करना है, लेट गो करना है इन सिचुएशंस को। द मोर यू प्रैक्टिस, इट्स इजियर, द इजियर इट गेट्स टू स्टे काम एंड फ्री। जितना आप इसको प्रैक्टिस करते चलोगे ये आपको हेल्प करते चलेगा शांत रहने में और आजाद रहने में, फ्री रहने में। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर टुडे। और इसमें अब प्लीज अगर किसी के माइंड में कोई सवाल है तो दे कैन आस्क एनीवन। अरे कोई तो रिस्पांस दो, सो तो नहीं गया सभी। मैम मेरे पास क्वेश्चन था, लेकिन वो टॉपिक में मैं पूछ नहीं पाई, और फिर अभी नहीं वो कौन आगे से बढ़ वाला, गए। कौन से वाला बताइए। अब तो मैं भी, मेरे माइंड से ही वो निकल गया। मैं लिखने चैट पे ही लिखने वाली थी, लेकिन फिर वो निकल गया है। देखो हमने किया है फॉरगिव योर सेल्फ का टॉपिक, लूज का, और सॉरी का, आज की डेट में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एंड हाँ, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, अ, बताइए आपका सवाल क्या है। मैम हमें मतलब हर वॉट एवर जो सिचुएशन आए तो हमें हमें ही लेना पड़ेगा ना 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस मैम, देखो कोई भी सिचुएशन आउटर वर्ल्ड में हो रही है ना, उस हम्म। सिचुएशंस को लेके आप क्या विचार रख रहे हो, ठीक है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपके दिमाग में जो सोच चल रही है वो मैं तो नहीं डाल सकती ना, या कोई और हम्म। पर्सन तो नहीं डाल सकता। वो कौन डाल रहा है आपके दिमाग में? आप ही डाल रहे हो। कहाँ से डाल रहे हो? आपके पुराने बिलीफ सिस्टम से, आपने जो एक्सपीरियंस किया है उन चीजों से। ये जो चीजें आपने सुनी हैं, देखी हैं, करी हैं, उन चीजों के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आ जाती है, वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। इवन वो किसी और का फॉल्ट भी है तो उस केस में भी मैं उस इंसान के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरे में अवेयरनेस आ जाएगी कि नहीं, ये सामने वाले का फॉल्ट है, मुझे नहीं डालना, उसका फॉल्ट है, उसका कर्मा है। वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होगा वो फेस करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग। बट मेरे को अपना एनर्जी उस चीज में पुट नहीं करना है कि हाँ, मेरे को उस चीज में कंफर्मेशन नहीं देनी है, मेरे को उस चीज में जजमेंट नहीं देनी है। क्योंकि मेरे को नहीं पता कि सामने वाले ने जो एक्शन लिया है ये वो किस सिनेरियो की वजह से उस सिचुएशन में था कि उसका डिसीजन वैसा था। हमें वो चीज नहीं आइडिया होती कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। तो हमारे माइंड में क्या चल रहा है उस सिचुएशन को लेके, दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। ओके मैम। एंड things are so simple around us but we make them more complicated। yes संजीव जी, हम लोग मतलब लाइफ इतनी सिंपल है, इतनी पीसफुल है कि हम हर चीज में प्यार डाल सकते हैं, हर चीज में। और ह्यूमन तो इतना कॉन्शियस है कि मतलब अपनी सराउंडिंग में जो चीजें अवेयर नहीं है ना, जैसे जानवर भी हैं हमारे इसमें, तो उनको नहीं पता कि लाइफ के बारे में कि क्या पर्पस होना चाहिए, या लाइक मतलब कैसे हम रिएक्ट कर सकते हैं। वो खाली प्यार देना जानते हैं। बट ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन डिस्ट्रॉय कर रहा है हर चीज को। वो समझ नहीं पा रहा लाइफ क्या क्या है। और गलती एक्चुअली ना,
उनकी भी नहीं है, किसी की नहीं है। ये जो बीच में जो हमारा 100-200 सालों का गैप पड़ गया ना, जो हमारा स्टडी मटेरियल हम लोगों ने कंज्यूम करा है अपने स्कूल टाइमिंग में, उसने हमें कभी लाइफ के बारे में सिखाया ही नहीं। तो ये चलो अभी हम लोग सीख रहे हैं, अगर इस मोमेंट पे भी सीख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है कि नहीं, हमें सिचुएशंस को समझना, उनको हैंडल करना, पीसफुली हर सिचुएशन से कैसे हील करना है, खुद को कैसे फ्री रखना है, ये सारी चीजें अगर हम अभी भी समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अभी भी हमारे पास टाइम है चीजों को सही डायरेक्शन में डालने का। शुभी, आपका कोई सवाल? या कमलजीत जी, मैम संजीव जी, आपका कोई सवाल? हाँ जी, हाँ जी, हर्षा जी। मैम कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मतलब हमें वही सुनना पड़ जाता है, मतलब हमने कुछ किया नहीं है फिर देखो भी। मैम, हमने कर्म किए हैं, एक्सेप्ट कीजिए कि हमने कर्म किए हैं। कई बार क्या यस। होता है ना कि सामने वाला भी, अगर हमने कुछ नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नहीं कर रही इस मोमेंट पे, ठीक है, मैं काम हूँ, सिचुएशन में हूँ, बट सामने वाला कोई कर्म ऐसा कर रहा है जो मेरे को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? क्या मैं उस गिल्ट को या उसके उस एंगर को या उसकी उस नेगेटिव फीलिंग को कैरी करना चाह रही हूँ अपने साथ में? ये चॉइस हमारे हाथ में आ गई है, ठीक है। अगर आप कैरी नहीं करना चाह रहे हो, खुद को स्पेस में क्रिएट कर लो कि थोड़ा स्पेसियस उस इंसान से इंटरेक्शन कम करना स्टार्ट कर दो। अपने माइंड में जब भी वो इंसान दिखे उसको ब्लेस करो, उसको देख के आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप ये करना स्टार्ट करो उस इंसान को लेके। आप देखो कि उस इंसान के बिहेवियर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप मान नहीं सकते, मैंने जब स्टार्ट किया था हो अपोनो, हमारे जो 25 ईयर्स से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे हमारी सराउंडिंग्स में, या 30 ईयर्स से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे सराउंडिंग में, वो खत्म होते हुए देखे हैं। तो ये तो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो लाइक मतलब किसी ने हमें कुछ बोल दिया या हम हर्ट हो गए, उन फीलिंग्स को लेट को करो। और कर्मा, आपको वो इंसान मिले हैं कि वो आपको अच्छा या बुरा बोल रहे हैं, वो क्यों मिले हैं? कहीं ना कहीं वो हमारे संचित कर्मों का खेल आ रहा है, ठीक है। हमने पास्ट लाइफ में हो सकता है कि हमने ऐसे कर्म किए हो, वो अब डिफरेंट एनर्जी फॉर्म में आके, डिफरेंट रिलेशन में आके हमारे साथ सेम बिहेवियर कर रहा हो। हमें भी नहीं ना पता हमने कौन कौन से किए हैं। आप जाके सो इमेजिन करो, जो 200 साल पहले जो लाइफ लोग जी रहे थे, वो लाइफ कैसी थी, उसके ऊपर मूवीज देखो, उनके एक्शंस देखो कि वो किस तरीके से एक्शंस लेते थे। तो अगर हम उस टाइम पीरियड में अवेलेबल थे एज ए ह्यूमन फॉर्म, तो हमने भी कहीं ना कहीं सिमिलर एक्शंस लिए होंगे, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि हम हमें बहुत कम देता है। लाइक ऊपर वाला जो है हमें बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ रखा हुआ है, बहुत ग्रेटनेस के साथ रखा हुआ है। तो चीजों को कनेक्ट करना सीखो। हो अपन अपन आपको कनेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। जो नॉलेज आपके पास है या जो एक्सपीरियंस आपके पास है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको और नॉलेज देता चलेगा। तो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, मेडिटेट करो। मेडिटेट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना है। दिमाग में विचार आएंगे, ठीक है, किसी का अच्छा विचार आएगा, किसी का बुरा आएगा। हम क्या करते हैं जब बैठे होते हैं ना, जब नॉर्मली हम बैठे हैं, दिमाग में विचार आया, सोचना कंटिन्यू कर देते हैं उस पे, मतलब क्या, उसके पीछे हमने भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो भागना नहीं है हमें किसी चीज के पीछे। मेडिटेशन में बैठ के, जैसे आप एक स्टेशन पे बैठ गए, आपके सामने से गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, विचारों को उसी तरीके से देखना स्टार्ट करो। वो आएंगे, जाएंगे, उनके पीछे भागना नहीं है। वो क्या करेगा? आपको लिटरली प्रेजेंट मोमेंट में रहने की हेल्प करेगा। अब किसी इंसान ने मेरे को कल बुरा बोल दिया, मैं अगले 4 दिन तक उस गिल्ट को कैरी करके चलूं, कहाँ की मेरी समझदारी होगी? नहीं होगी ना। उसके कर्मा को वहीं पर रिलीज करो कि मुझे इस एनर्जी के साथ वाइब नहीं करना है, मैं शिफ्ट कर रही हूँ अपनी एनर्जी को। दैट्स इट, लेट गो करो, फॉरगिव करो, मूव ऑन करो। राइट ज्योति जी। हमें खुद को, देखो किसी और को हम हील नहीं कर पाएंगे कभी भी, हमें खुद को ही हील करना है। अगर हम खुद को हील करके, हमारी सराउंडिंग में नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन भी आ रही होगी ना, हम बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे। मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशंस, टफ सिचुएशन आ जाए, हार्ड सिचुएशन आ जाए, सिचुएशन हमारे फेवर की नहीं होगी, उसमें भी हम पॉजिटिव क्या चल रहा है वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब हम ग्रेटिट्यूड में आ जाएंगे या हम लेट गो की पोजीशन में आ जाएंगे, तो ये चीजें प्रैक्टिस करते रहो। रिजल्ट्स आप धीरे 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 आप ऑब्जर्व करते रहो कि सिचुएशंस कैसे आई, क्यों आई, किस लिए आई, मेरे को ये क्या देख के गई है,
सामने वाले का क्या बेनिफिट हुआ है इसमें, ये लॉस हुआ है। कोई भी इंसान जो होगा उस सिचुएशन से रिलेटेड, किस कोई भी इंसान लॉस में नहीं होगा, ये चीज देखना आप। और ये मैंने एक्सपीरियंस की हुई चीजें हैं मेरी, कि मतलब कोई सिचुएशन है जो मेरे फेवर की नहीं है, पर वो किसी और के फेवर की भी नहीं है, बट ना उस सिचुएशन ना मेरा नुकसान किया है, ना सामने वाले का नुकसान किया है, दोनों के लिए जो बेनिफिशियल है। तो वो चीज है। यस ज्योति, मैं भी बस क्लोज कर रही हूँ आज। 1.5 आवर का सेशन हो गया है हमारा ऑलरेडी। सो कल मिलते हैं नए सवालों के साथ और नई इंफॉर्मेशन के साथ और नई लर्निंग के साथ। सो टिल देन एवरीवन, राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर। राधे राधे, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट।